Hello everyone. So I hope you all are doing good, and this video finds in your best of your health. And first of all, I presume that you have already gone through my earlier video as to how to prepare for IPCC old course audit subject. So this is my second video, and today I'll be discussing as to how to prepare for ITSM that lies in CA IPCC Group 2 old course. Okay, so without wasting any much time, let's get started. Okay, so first of all, I've already mentioned that if you have also gone through, then please go through it, and if you haven't gone through, then please go through it because other than audit subject, I've also gone through other things that are necessary to clear the subject, and not only subject, the whole group. ऑडिट के अलावा और भी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करी है, ग्रुप के बारे में कैसे क्लियर करना है और पूरा ओवरऑल पढ़ने के बारे में, तो उसे एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है. In case if you have your own personal method which you think and which you are very confident about that it will help in clearing that exam, then please go for it. This video is not for you because our own method is perfect whatever we make about because we know ourselves the best. But if you are in a situation यार कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है एंड आई डोंट वांट टू मेक एनी आई डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक्स, मुझे कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करने हैं, आई जस्ट वांट अ श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन कि आफ्टर फॉलोइंग दिस आई विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर माई एग्जाम्स, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू गाइस. अगर कोई कन्फ्यूजन है दिमाग में या बहुत ज़्यादा क्लटर है कि हाउ शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सब्जेक्ट एंड हाउ शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई group, and just one thing you have to keep in mind that whatever step you're going to take, you will have to take all of those steps regarding keeping in mind कि इससे एग्ज़ाम क्लियर होगा. कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं चल सकती, ठीक है. जो भी स्टेप आपको लेना है वो ऐसा ही लेना है कि यार इससे तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, मेरे को वो वाली मेहनत करनी है और मेरे को वही वाले सारे स्टेप्स करने हैं, ठीक है. तो as I already mentioned that in case you have confidence in your own method, then it's perfect. There is nothing better than that and it can never be. Alright, but in case if you are confused and just don't know about what to do and you need a short strategy to clear the exams, then this is for you. Okay, so first thing first, you will have to understand a simple thing that while preparing for this attempt, you have to change your methodology which you are actually following, because अभी तक आप जो भी मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे थे, जो भी मेथड फॉलो कर रहे थे, इट डिडेंट लैंड यू ऑन द पासिंग साइड. ऑलराइट, बिकॉज नाउ यू गिविंग IPCC ग्रुप 2 ओल्ड कोर्स फॉर द लास्ट अटैम्प्ट. आई एम एज्यूमिंग कम से कम आपने 3-4 अटैम्प्ट तो पहले दे ही रखे हैं. ओके, सो इन दैट केस आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि अब मुझे अपना मेथड पहले से चेंज करना पड़ेगा. मैं जिस मेथड से ऑलरेडी पहले कर रहा था, इट didn't help me to clear the exams. There can be multiple of reasons. I'm not blaming you at all. Please don't think like that. I have been where you guys were at a time because there was a time when I was not able to clear group 2 old course, and I know how hard it can be and it could be. I have been there, done that. So because I share the same feelings as you are, and I know that this is a very important thing to share it with you guys, that is why I'm making this video and sharing it with you, so that you also know what all you should do to clear the exams and not end up on the failing side yet again. Okay, so next is that अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं ली हैं, देन प्लीज़ 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 क्लास ले लो. दिस इज़ डू और डाई अटैम्प्ट, और प्लीज़ क्लास ले लो. इट वॉन्ट टेक मच ऑफ अ टाइम. अभी तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस में 1000, 1500, 2000, 500 रुपये, 600 रुपये, कोई तो फ्री में भी, इफ़ यू विल गेट टू नो, फ्री में भी क्लासेस मिल रही हैं आपको आज के टाइम में. तो अगर ITSM की क्लासेस, खासकर ITSM की आपने नहीं लिया ना अभी तक, तो प्लीज़ गो फॉर इट एंड डोंट टेक इट अपॉन योर ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस यार कि मैं क्लास के लूँ, मेरे को तो बहुत कुछ आता है, मैंने 4-5 अटैम्प्ट दे दिया है, आई नो ईच एंड एवरी टॉपिक. देन प्लीज़ मैन, trust me, keep that overconfidence and ego aside of yourself and please take classes. because नहीं लिया ना आपने एक बार भी, तो प्लीज़ ले लो, क्योंकि वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं ना ITSM क्लियर करने के लिए, वो आपको क्लासेस से पता चलती हैं. प्लस में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो आपको ना निमोनिक कोर्स बना के दे देते हैं, ठीक है. वो आपको निमोनिक कोर्स बना के देते हैं, तो कम से कम ऐसे पूरे कोर्स में करीब करीब 20 से 30 क्वेश्चन तो मिनिमम होते हैं जो आपको रटे हुए होते हैं.
मतलब वो अगर एग्ज़ाम में लैंड कर जाएंगे ना, तो इट विल गिव यू 90 to 95% मार्क्स। लाइक अगर 4 मार्क्स का है तो 3 से 3.5 तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, वो तो कहीं भी नहीं गए आपके। तो ये कॉन्फिडेंस आता है क्लासेस लेने से। और आई टी एस एम इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इवन आई नो दैट वी डोंट डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, तो दैट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू टेक क्लासेज एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड टीचर्स और गाइस। ठीक है, बिकॉज यार वही सीधी सी बात है, व्हेन आई मेंशन दिस इन द पीपीटी आल्सो, दैट इट इज़ हुक अ क्रुक। कुछ भी करना है लेकिन मुझे क्लियर करना है। ठीक है, आई हैव टू क्लियर दिस अटेम्प्ट वट एवर हैपन्स। ठीक है, कोई भी चांस नहीं ले सकते, लास्ट अटेम्प्ट है, नो एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, जो भी लेना है अपन को ऐसे सारे डिसीजन लेने हैं कि हम पासिंग साइड पे लैंड करें, सीधी सी बात। ठीक है, अब अब आपने क्लासें ले ली हैं, या तो आप क्लास ऑलरेडी ले चुके हो पहले, या फिर अभी आपने क्लास ली है। नेक्स्ट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज़ कॉल्ड इज़ नोट्स प्रिपरेशन। ठीक है, नोट्स प्रिपरेशन। नॉट दिस इज़ ऑनेस्टली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ट्रस्ट मी, टाइम लगेगा नोट्स बनाने में। पूरा कोर्स है आईटी और एसएम, 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट दिस इज़ वट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन क्लियरिंग द एग्जाम्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ट्रस्ट मी, एंड इट इज़ अ गेम चेंजर। मैंने लिखा है, आई मीन इट, आई हैव डन इट, दैट्स वाई एम टेलिंग यू। और अभी इसके क्या हैं, इसमें स्पेसिफिक्स क्या हैं, आई जस्ट गेट टू इट। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ टू मेक नोट्स, तुमको आईटी के नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आपने जो भी मटेरियल से पढ़ रहे हो ना आप, या तो आपने स्टडी मैट से पढ़ा है या भी किसी ऑथर की बुक से पढ़ी है, उसको पूरा एक बार गो थ्रू कर लो। उसमें बीच में अटकने की ज़रूरत नहीं है। तुमको बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी समझ में नहीं आ रही, क्या है क्या नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। एक बस गो थ्रू करते चले जाओ, नहीं भी समझ में आ रहा ना कोई बात नहीं, गो थ्रू कर लो पूरा। एक बार पूरा एक बार पूरा सब्जेक्ट ना, अपने मटेरियल से जो भी पढ़े हो आप, उसे जस्ट कंप्लीट इट एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस। ऑलराइट, नाउ टेक आउट अ प्रैक्टिस मैनुअल। ओके, टेक आउट अ प्रैक्टिस मैनुअल और उसको गो थ्रू करो ट्वाइस, पूरी पूरी की पूरी गो थ्रू करनी है प्रैक्टिस मैनुअल 2 बार। ठीक है, फिर तुमको क्या करना है, आईटी के लिए हर एक क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल चैप्टर वाइज उसके नोट्स बनाने हैं हमें प्रैक्टिस मैनुअल अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब होगा क्या, बाय द एंड ऑफ इट यू विल हैव होल प्रैक्टिस मैनुअल रिटन इन योर ओन हैंड राइटिंग, इन योर ओन नोट इन योर ओन नोटबुक। अब होगा क्या, उससे उससे ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आएगा तुम्हें कि यार ये वाली प्रैक्टिस बन रहा है, ये तो मैंने खुद नोट्स बना के करी हुई है, इसको तो फटाफट से रिवाइज़ कर लूँगा। जहाँ पे आपको 5 घंटे लगते थे ना एक चैप्टर को रिवाइज़ करने में, ट्रस्ट मी वहाँ पे आपको आधा घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा जब आप नोट्स बना लोगे। यू विल कट योर टाइम बाय 5 टाइम्स मिनिमम। आपकी टाइम इतना कम होगा, प्लस उससे सेकंड बेनिफिट ये होगा कि यू विल बी एबल टू रिटेन दैट content written in the practice model in your mind, because when we write something in our own language now, it helps us in remembering the content or the subject or whatever the case is in our mind. But if it is written in a printed form or in someone other's language or in someone other's handwriting, then it becomes a really difficult task for our mind to understand it and retain it in our mind. So पहले टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने तो आई ओनली हैड 1.5 months, or it was around 1 month only, when I had exam leaves for my CIPC group 2, and I took exam for my articleship. And in those time I not only prepared the notes of audit and ITSM, and I cleared the exams and I scored exemptions also. So if I can do that much in 1.5 months, then you can definitely do all of these things in next 3 months, because trust me, whatever is happening around about now, you just have to think that it is all happening because of you guys. ये सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है। अगर ये सब नहीं होता, तुमको इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तुम घर पे नहीं बैठे होते और तुमको इतने सब बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते, इतनी सस्ती क्लासेस नहीं मिल रही होती। ये सब कुछ एक्चुअली हम लोगों के बेनिफिशियल के लिए हो रहा है, बट इट इज़ जस्ट अबाउट हाउ डू वी लुक एट इट, है ना। हम हमारा नज़रिया क्या है, हम जिस नज़रिए से इसको देखेंगे ना, इट विल ओनली टर्न अबाउट इन दैट फेज ओनली। इसको पॉजिटिवली लो, ये सब जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ ही हो रहा है, और तुमको IPCC ग्रुप 2 क्लियर करवाना है इस बार, इसीलिए सब हो रहा है, और तुम क्लियर करोगे, और 2 अटेम्प्ट बाद तुम फाइनल का अटेम्प्ट दे रहे होगे, सीधी बात, ये सब हो ही इसी रहा है। ठीक है, अब तुमको जो नोट्स बनाने हैं उस पर आते हैं। जो नोट्स बनाने हैं वो प्रैक्टिस में को ऐसे नहीं करा कि छाप लिया, उसके छोटे छोटे न्यूमैनिक कोड्स बनाओ,
या तो तुमने क्लास ली है, उसमें बहुत सारे बनाए होंगे टीचर ने, उसको यूज़ करो, उसके हिसाब से उसकी हेल्प से नोट्स बनाओ। और फिर जो उन्होंने नहीं बनवाए उन आंसर्स के तुम खुद नोट्स बनाओ, न्यूमेरिक वाले कोड्स बनाओ, और उनके नोट्स बना के फिर अपने प्रैक्टिस में के जो तुमने आंसर लिखने हैं नोटबुक में फिर बनाओ। ये नहीं कि प्रैक्टिस में लिया सीधे उतार लिया, फ़ायदा क्या हुआ उसका। उसको शॉर्ट फॉर्म में करो और न्यूमेरिक कोड्स बना के, क्योंकि पर्पस ये है, पर्पस देखो ध्यान रखो, नोट्स बनाते टाइम यू विल हैव टू रिमेंबर कि पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस अपन का ये है कि हम उसको गो थ्रू कर पाए मल्टीपल टाइम्स, ऐसे कि रिटेन हो जाए। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स हमको उसको गो थ्रू करना है और रिटेन करना है। तो जब नोट्स बना रहे हो तो ध्यान रखना कि नोट्स कंसाइज होने चाहिए और ऐसे कि याद हो जाए। ठीक है, जिसके नहीं है न्यूमेरिक को टीचर नहीं बनाया उसको तुम खुद बना लो। ठीक है, और वही मैंने बात जो बोली है, आई समझ में नहीं आती, लेकिन तुमको एफर्ट ऐसे करना है कि अब तुम क्लियर कर लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बहुत बूस्टअप होगा जब पूरी प्रैक्टिस मैनुअल तुम्हारे हाथ से लिखी होगी ना। ट्रस्ट मी, मैंने प्रैक्टिस मैनुअल आईटी की लिखी हुई थी अपने हाथ से, मैंने 5 बार आईटी रिवाइज करी थी, 5-6 बार, 1.5 दिन में जब एग्ज़ाम लीव्स होती हैं। आई वॉज एबल टू डू दैट बिकॉज I gave 3 attempts earlier before this, and I was not able to revise the whole IT only more than once. But when I did all of these efforts and made all these notes and revise IT, I was able to revise at least 5 to 6 times the whole IT, and I did, I think, SM 3 to 4 times. I don't exactly remember, but IT I do remember, because इट इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो ना समझ में नहीं आता और मन सा नहीं करता उसको पढ़ने में। सी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, सबके अपने इंक्लिनेशंस होते हैं, बट दैट इज़ व्हाट यूज्ड टू हैपन विद हिम। सो दिस इज़ एक्चुअली द वेरी स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स दैट आई हैव रिटन। अगर तुम पीएम से पढ़ रहे थे ना और अगर तुम सिर्फ 10% रिटेन कर पा रहे थे, ट्रस्ट में तुम कम से कम 50% रिटेन कर पाओगे, वो भी प्रैक्टिस में, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में लिखी हुई है। ये मास्टर स्ट्रोक है तुम्हारा, ये लोगों को नहीं पता होती, और बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन उसको ढंग से नहीं बनाते नोट्स को। तो अब यही मेथड फॉलो करके नोट्स बनाओ, एंड इट इज़ शॉर्ट हेल्प यू इन क्लियरिंग द एग्जाम, बिकॉज इट हेल्प मी यार, एंड हेल्प ऑल अदर पीपल टू होम आई टोल्ड। वो लोग मेरे नियर बाय मेरे नॉलेज में थे, तो उनको मैंने डिस्कस करी थी, इट हेल्प दैम। एंड जो बंदा 30-40 में स्कोर कर रहा था ऑडिट में, वो एग्जामिशन ला रहा है, या फिर जो फेल हो रहा था आई में वो पास हो रहा है, तो इट इज़ समथिंग राइट। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं हैं उनको नोट्स मत बनाना। जो सिर्फ नॉलेज पर्पसेस के लिए या कंसेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चंस है ना, उनके नोट्स मत बनाना, उसको स्किप कर देना। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाले हैं ना, उनको ज़रूर नोट्स बनाने सारे के सारे हमने। ठीक है, उनको मत छोड़ना। अब तुमने क्या करना है, स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, जो भी मटेरियल पढ़ लिया, फिर प्रैक्टिस में 2 बार कर ली, फिर तुमने उसके बाद नोट्स बना लिए। अब तुमने क्या करना है, 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है आई के, अभी कम से कम 3 पूरे। उसमें वही स्ट्रैटेजी जो मैंने ऑडिट वाली वीडियो में बताया था वही करना है। जो आंसर्स तुमने इनकम्प्लीट छोड़े हैं, वो पेपर ख़त्म होने के बाद रेड पेन लेकर टीचर की तरफ वो आंसर्स कंप्लीट करने हैं सजेस्टेड आंसर्स की हेल्प से। फिर जो आंसर्स तुमको आते नहीं थे तुमने छोड़ दिए, ठीक है, या फिर जो वो वाले थे ऑप्शनल वाले थे, उनको भी उसी टेस्ट पेपर के आगे कंप्लीट करो, रेड पेन लेके पूरे आंसर लिखो शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करने के लिए। उसी फॉर्म में लिखना है, फॉर्म मैंने वही रहेगा, लेकिन रेफर क्या करोगे, सजेस्टेड आंसर, उसको देख के उसको शॉर्ट फॉर्म बना के न्यूमेरिक्स बना के और वहीं पे अपने रेड पेन से कंप्लीट करो पूरा की पूरा टेस्ट पेपर के आगे। ठीक है, लिटरली रेड पेन लेके टीचर का चेक करना है, उस टाइम भूल जाओ कि किसका पेपर है, मेरा पेपर नहीं किसी और का, मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें ध्यान रखना एक चीज़, इसमें छोटी सी ट्रिक ये है दैट जब पहली बार पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो तुमको पता है यार ये वाला आंसर मुझे पूरा आता नहीं है, आई डोंट नो द होल आंसर अबाउट इट, एंड ऑल्सो दे विल बी सम आंसर्स दैट आई डोंट नो कम्प्लीटली दैट आंसर। सो डू वन थिंग कि उसकी थोड़ी सी जगह छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम 2 क्वेश्चन पेपर एक साथ कर रहे हो, वैसे आई वुड सजेस्ट दैट डोंट डू दैट, बट स्टिल इफ़ यू डू तो दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले जगह छोड़ दो, ताकि पहले वाले क्वेश्चन पेपर के तुमने जो भी क्वेश्चन आंसर छोड़े हैं ना, उसके आंसर लिखने के वहाँ पे स्पेस हो। और जब 2 आंसर लिख रहे हो और पहला आंसर तुमको पता है कि मैंने ये वाला कंप्लीट नहीं लिखा है, इसमें और डेटा लिखना है और इसमें रेड पेन से बाद में लिखूँगा, मैं आंसर कंप्लीट करूँगा, तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना पहले से ही, क्योंकि बाद में ना इजी होगा तुमको रिवाइज़ करने के लिए। तुमने पहले तो छोटा छोटा करके पिचका के एक साथ लिख दिया, फिर बाद में तुम उसका रेफ़र करके आंसर 2A का यहाँ पे भी रेफ़र करो, फिर आंसर 3A यहाँ लिखा है आधा आधा वहाँ लिखा है, फ़ायदा नहीं होगा उसका कुछ। ठीक है,
answer you will be referring it from your notes. You will have to refer your notes and write that answer in your test notebook in mnemonic form, that is in the same manner in your notebook. या वो तो ऑब्वियसली तुम वो वाली चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, तुमको वो वाले जो आंसर्स कंप्लीट कर रहे हो ना अभी बुलेट पेन से, वो भी निमोनिक फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि पूरा पूरा से एक्स्ट्रा आंसर्स उतार लिए, क्योंकि फिर पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना अपना रिवाइज करने का। तो उसको वही वाली चीज़ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एस एम के क्या करना है, अब एस एम में तुम क्या करो, मटेरियल से गो थ्रू कर लो, फिर उसके बाद अपने ऑथर की बुक पढ़ लो वंस, ठीक है, जो भी है, और फिर 2 बार प्रैक्टिस मैल करनी है तुमको। अब तुमको इसमें सीधा क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तुमको, 3 क्वेश्चन पेपर इसमें एस एम के, ठीक है। फिर उसके बाद वही चेक करना है, आंसर कंप्लीट करना है, वो तो तुमको मैंने पहले ही बता दिया है ना। अब इसके बाद यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वही टू ऑल द आंसर्स, वही न्यूमेरिक कोड यूज़ करके वही वाली सेम टेक्निक जो बताई है उसमें वही करनी है, ठीक है। हुका करो, सीधी सी बात है यार, हुका करो तुमको यूज़ करना, और बस सब्जेक्ट पूरा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, ये है मेन कंसर्न, ठीक है। अब तुम्हारा आएगा फाइनल असॉल्ट। सी तुमने क्या करा, सारी चीज़ें कर ली, अपने मटेरियल से गो थ्रू कर लिया, प्रैक्टिस मैंने 2 बार पढ़ ली, फिर तुमने पेपर सॉल्व कर लिए, नोटबुक नोट्स बना लिए, सब कर लिया। अब तुमको क्या करना है, अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों 4 बार रिवाइज़ करनी है, टोटल 4 बार पूरी की पूरी, ठीक है, जितने भी तुमने बनाए हैं। फिर तुमको क्या करना है, 3 एग्ज़ाम पेपर बनाने हैं, ठीक है, और उसको देन यू विल हैव टू चेक ऑल ऑफ दोज इन द सेम मैनर एज यू डिड अर्लियर। This process is honestly is a time consuming process, but this is what chartered accountancy is all about. It demands time and consistency, nothing else. If you want to ask the Brahmastra of clearing the CA exams, then there are 2 things only: time and consistency. It requires a lot of time. Whatever time you can give, it is always less for this course. When you're entering this course and when you're in this course, you'll have to understand this is what is actually required and you will have to follow it, ठीक है। टाइम देना ही पड़ेगा, बाकी चीज़ों से टाइम कट करना पड़ेगा, and you will have to inculcate all of those time in CA course only. And second is consistency. You'll have to be consistent with your efforts and your revisions, and you have to be, unless and if not, you will remember, you will forget everything that you have read earlier, और तुम एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, एंड इट इज़ अ वेरी मेन रीज़न वाई पीपल फेल, कंसिस्टेंसी नहीं होती हमारी, ठीक है। अब क्या होगा, तुमने पूरी की पूरी पीएम पढ़ ली है, तुमने 6 कंप्लीट एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करे हैं, और उसके आंसर्स कम्प्लीटली लिखे हुए हैं तुम्हारी हैंड रिटन नोट्स में। 6 एग्ज़ाम पेपर तुमको तुम्हारे दिमाग में है, प्रैक्टिस मॉडल तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है। और अब तुम कंटेंट को सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, यू आर एबल टू रिटेन इट इन योर माइंड, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, तुम ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे तुम क्लियर हो रहे हो, विल गेट कॉन्फिडेंस। अब ये सब करने के बाद ना इंसान को इनविंसिबल वाली फीलिंग आती है, यार अब तो मैं फोड़ ही दूंगा एग्ज़ाम, अब तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। बस यू विल हैव टू रीच दैट स्टेज ओनली, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू रीच दैट स्टेज ना, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर एंड कैन गिव यू इन राइटिंग। व्हेन यू गेट दैट इनविंसिबल फीलिंग ना, यू विल गोइंग गो अप एंड अप। बस यू विल हैव टू रीच दिस इनविंसिबल फीलिंग ओनली कि यार अब तो मेरे को सब आता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर आ जाए मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। बट यार कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब पूरा प्रोसेस है, यू विल हैव टू गो थ्रू, दिस इज नथिंग लाइक दैट, एंड यू नो फॉलो दिस टेक्निक एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लैंड ऑन अ पासिंग साइड। और जो भी एफर्ट करना है यू विल हैव टू डू कि आप पासिंग साइड पे ही लैंड करो, एंड इट इज़ अ ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड ऑल्सो, ठीक है। वही 6 टाइम और 4 बार जो मैंने रिवाइज करके बता दिया। ब्रह्मास्त्र मल्टीपल रिविजन्स, इन सारी चीज़ों से तुम मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि ITSM और ऑडिट खासकर सब्जेक्ट्स जो होते हैं क्यों अटकाते हैं, क्योंकि थियरी होते हैं और इसमें ना इंटरेस्ट अपना डेवलप नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जब करेंगे तो मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे, तो मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे ना, दिमाग में रिटेन हो जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे तो आप पेपर में भी यू विल बी एबल टू परफॉर्म देयर एंड क्लियर द एग्जाम्स, ठीक है। ओके, other points that this is your last attempt, you have to give everything that you have, like everything, day in and day out, just give everything of yours. You have no choice left now, you cannot do experimentation, you cannot take any chances, you cannot be foolish, you cannot be childish, nothing. You have to be mature enough to know what you want in life. If you think CA is not for you, then please leave it. Okay, sorry for the inconvenience. So
ठीक है, और लीव नो स्टोन अनटर्न, यू हैव टू डू एवरीथिंग एंड जस्ट गो विद योर फुल फोर्स, ठीक है, जस्ट गिव एवरीथिंग दैट यू हैव। स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, until unless you are able to complete your daily targets, just switch off your mobile phone. You will have to do this, you know, these are the extra things that you will have to do and they will help you to clear the exams. These are the extra things, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, ये सब चीज़ करनी पड़ेंगी। फ़ोन उठाओ, साइड में रखो, स्विच ऑफ। जब मेरा डेली टारगेट कंप्लीट होगा देन आई विल कम बैक एंड सी इट। दिस इज़ वट इवन आई डिड, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आईटी। जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो तब से लेके एग्ज़ाम डे तक डेली पढ़नी है आधा घंटा मिनिमम। तुम 1 घंटा पढ़ते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमम आईटी ऑन अ डेली बेसिस हाफ एन आवर यू विल हैव टू डू एंड देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू इट। यू विल हैव टू डू एंड हैव टू डू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कीप इट इन माइंड, ठीक है। मिनिमम भी कम से कम तुम 9 घंटे की सिटिंग लगाओ और 7 आवर्स का आउटपुट निकालो। ये 15 से 20 दिन में 12 घंटे का सिटिंग और 11 घंटे का आउटपुट होना चाहिए। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स बट यू विल हैव टू डू। टाइम बहुत कम बचा है और दिस इज़ योर लास्ट टाइम एंड देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट, यू विल हैव टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट दैट इतना एफर्ट नहीं लगा पाओगे या इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे, then please man forget about final CA. It is more than double of what CA IPCCs, मतलब leave double, it is triple or 4 times of what CA IPCCs. CA finalist अलग लेवल है बिल्कुल यार, अलग ही लेवल है। ऑडिट का तुम कोर्स कंपेयर करके देख लो, यू विल गेट द आइडिया, ठीक है। और सी फाइनल भूल जाओ और सी भूल जाओ अगर तुम इतना अपना आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो, एफर्ट नहीं दे पा रहे हो अपने लास्ट अटैम्प्ट के लिए। You've already given a lot of attempts. Just keep that in mind. I'm not demotivating you. I'm just motivating you to give your best because this is chartered accountancy course and it is a professional course and it is not like BCom honors or something that you can give some little time to study and then do a lot of things besides it and you want to clear the exams. Sorry buddy, it doesn't happen like that. You just have to go through all the process. You'll have to give this time specific to it and then only you will be able to clear the exams. That is what the rankers and even the people who pass the exams do, ठीक है। and yes you can, even if I can then you can. I'm a very bad at studies, that I understand and I know myself, but if I can then you guys can definitely do it. Please go through it and if have any kind of doubts I'll be leaving my mail ID in the description below and you can always talk to me and get to know about any specifics that you want to talk about. And you can also talk about the video in the comment section also if you have any doubts. And at the end I'd just like to say that please go get it, save your last attempt and all the best. Thank you, bye.